how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study living things and non-living things. Ready, steady, start. Some jumble words are given below. Arrange them to get meaningful word. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Specific characteristics of living things. Difference between living things and non-living things. Similarities between living things and non-living things. Difference between plants and animals. Habitat. Okay, देखिए. We see a wide variety of things around us such as trees, cows, dogs, birds, insects, chairs, tables, computers, rocks, stones, soil, buses, cars, televisions, clouds, sky, etc. Some of these can walk, others can't. Some can see, others can't. Some can speak, others can't. These things can be divided into two categories, living things and non-living things. The things which have life in them are called living things. The things which do not have life in them are called non-living things. Okay. अभी इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, हमारे आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रीज, काउस, डॉग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, एवरीथिंग. ठीक है, अब इनमें से तो कुछ होती हैं लिविंग थिंग्स और कुछ होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि जीती हैं, जिंदा रहती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. लेकिन जो चीज़ें मूवमेंट भी खुद नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं, उनमें लाइफ नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, characteristics of living things. Let's study the characteristic features of living things to understand the difference between living things and non-living things. Living things are made up of cells. The body of living things are made up of cells. Cell is a basic and functional unit of living thing. A group of cells which are similar in structure and perform a specific function is called a tissue. A group of tissues which perform a specific function is known as an organ. A group of organs which perform a specific life process forms an organ system. Various organ system functions together to make an organism. Living things made up of a single cell only are called unicellular ऑर्गेनिजम्स. ओके, देखिए लिविंग थिंग्स जो होती हैं, हमारी जो बॉडी है वो कुछ चीज़ों से, सेल्स से बनती है. ओके, अब सेल्स को अगर आप ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा सेल होता है तो उसे हम बोल देते हैं टिश्यू. एक ग्रुप जब बनता है सेल्स का तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू के जब ग्रुप्स बनते हैं उसे हम ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है, अब इसी तरीके से जब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर सेल एक ही है तो उसे यूनिसेलुलर सिस्टम बोला जाता है. ठीक है, और उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली बन के आता है. ठीक है, देखिए example, amoeba, yeast and bacteria. Living things made up of multiple cells are called multicellular organisms. Example, human beings, animals and plants. Okay, अब देखिए एग्जाम्पल में आपके हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया. ये सिंगल सेल से बनते हैं. अब लिविंग बींग्स जो कि मल्टीपल सेल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. लैब एक्टिविटी 1. ऑब्जेक्टिव: to observe unicellular organisms using a microscope. Procedure: visit a biology laboratory in your school and take the help of your teacher and observe the permanent slides of microorganisms kept in the laboratory under the microscope. Discuss your observations in the class and inform the characteristics of unicellular and multicellular organisms. ये आप खुद से करेंगे. Living things need food, nutrition. All living things need food to survive. Plants make their own food through photosynthesis, but animals get their food from either plants or other animals. The plants are called
processors and the animals are called consumers. Most plants have a green substance called chlorophyll in their leaves, which enables them to make their own food using sunlight, carbon dioxide from the air, and water from the soil. The process is called photosynthesis. Animals do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. They eat plants or other animals. Okay, देखिए जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो निर्भर करते हैं सनलाइट पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे और न्यूट्रिएंट्स पे, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे कैरी ऑन करते हैं। वही एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं या तो फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स को बोला जाता है कंज्यूमर्स, ठीक है। अब फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन कैरी आउट all the life processes. The food is used by plants and animals to get energy, which is used to perform a different functions. Living things need food to grow, to remain healthy, and to fight diseases. The process by which living beings obtain food and use it to obtain energy is called nutrition. Okay, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हमें जो फूड मिलता है वो प्लांट्स के थ्रू मिलता है, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू हमें फूड मिलता है, वो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें हेल्दी रखता है, हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और जो खाना हमें मिलता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। रेस्पिरेशन is the process of taking in oxygen, using it to release energy from food and give out carbon dioxide. All living things respire, which means that all plants, animals, insects, etc. do respiration. Okay. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और फूड की हेल्प से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम एग्जिट करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका ये मतलब है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है इन सब में। ओके, नाउ द रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ एंड मूवमेंट. Respiration takes place in both plants and animals. It is a chemical reaction in which food reacts with oxygen to release energy. Carbon dioxide and water are also produced. देखिए, रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि जब फूड इनटेक करते हैं तो उसके थ्रू आपका क्या आता है, प्लांट्स के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजन आता है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. रेस्पिरेशन should not be confused with breathing. Breathing is the process of air moving in and out of the body. In this process of breathing, two steps are followed. Inhalation, it involves inhaling of air containing with lots of oxygen. Exhalation, it involves the letting out of the air containing with lots of carbon dioxide and water vapor. Respiration को हमें breathing से confuse नहीं करना है, क्योंकि breathing जो है वो एक अलग प्रोसेस होता है जिसमें जो भी मूविंग एयर होती है उसे हम इनटेक करते हैं, मतलब कि हम बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं. इनहेलेशन मतलब कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. और उसके बाद एक्सहेलेशन मतलब कि एक्सहेलिंग दी एयर विच वी हैव टेकन इन. तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को एक्सहेल करते हैं. ओके, नाउ it is a part of respiration which involves the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide between an organism and the surrounding atmosphere. The process of released energy by the burning of food inside a body with the help of oxygen is called respiration. देखिए, ये एक प्रोसेस होता है जो कि टू गैसेस है उनका एक्सचेंज होता है, मतलब कि आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है. अब
ये जो प्रोसेस होता है जो कि बाय बर्निंग फूड, हमारे जो शरीर में फूड गया है उसका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, नेचर हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा ब्रीथ थ्रू लंग्स, earthworm breathe through skin, fish breathe through gills, frogs breathe through skin when in water and lungs when in land, and plants breathe through stomata, pores, leaves, mammals breathe through the lungs। ओके, देखिए नेचर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस हो गए लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, अर्थवॉर्म हो गए आपका स्किन के थ्रू, फिश गिल्स के थ्रू करती हैं, एंड आपके फ्रॉग जो हैं वो थ्रू लंग्स ब्रीथ करते हैं जब लैंड पे होते हैं, और जब वाटर में होते हैं वो थ्रू स्किन ब्रीथ करते हैं। ओके, नाउ जो आपका प्लांट्स हो गया वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा मतलब कि लीव्स जो होती हैं उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो उसके थ्रू ब्रीद इन करते हैं। ओके, civic literacy. It is important to maintain a healthy respiratory system through regular exercise, avoiding smoking and exposure of pollutants. Okay, बहुत important है अपनी respiratory system को healthy रखना। ठीक है, इसीलिए हमें smoking avoid करनी चाहिए, और जो भी pollution area या pollutants है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसे inhale नहीं करना चाहिए। Okay, living things grow. All living things can grow. Growth is the natural development in the size and strength of an organism, such as a body grow into a child and a child grows into an adult. A mango seed grows into a tree, a chick grows into a hen or a cook, etc. Okay, जितनी भी living things होती हैं वो grow करती हैं, मतलब छोटे से बड़े होते हैं। जैसे कि बेबी होते हैं वो बड़े होके मेल मतलब कि men या फिर women बनते हैं। ठीक है, वहीं चिक जो है वो हैन या कुक बनता है। ठीक है, मैंगो की जो सीड है वो बड़ी होकर के ट्री बन जाती है, मैंगो ट्री। ठीक है, ग्रोथ कैन नॉट बी रिवर्स्ड लाइक द ग्रोथ ऑफ एन एडल्ट टू अ चाइल्ड और ऑफ अ ट्री टू अ सीड। It is internal because it takes place due to the addition of new body materials. ग्रोथ को हम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी, परफेक्ट जो बॉडी होती है उसे दोबारा से बेबी नहीं बनाया जा सकता, और एक जो मैंगो ट्री बन चुका है उसे दोबारा से सीड नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ग्रोथ के साथ साथ बॉडी मटीरियल्स न्यू ग्रो करते रहते हैं, इसलिए। ओके, whereas non-living things generally do not grow. It is reversible and external. If growth occurs, it is due to the addition of materials from outside. For example, a crystal of sugar may grow in size due to the addition of its own particles on the outer surface. देखिए, living things तो grow करती हैं बट वो रिवर्स होके नहीं जा सकती। वैसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रो ही नहीं करती। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती, वो रिवर्सिबल हो सकती हैं और एक्सटर्नल के थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, ना उनकी जो ग्रोथ है वो कब अकर होती है? जब उसमें हम और भी ज़्यादा मटीरियल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तब जाके उनकी ग्रोथ जो होती है वो होती है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है क्रिस्टल ऑफ शुगर, वो ग्रो कर सकता है, उसका जो साइज है वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एडिशन हो सकता है उसके खुद के पार्टिकल्स का। ठीक है, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. All living beings remove waste materials from their bodies. Waste products are produced and living organisms as a result of bodily processes like digestion and respiration. These products are poisonous and may cause harm. Thus, they need to be continuously removed from our body. Okay, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कि उनके बॉडी का जो वेस्ट होता है वो उनकी बॉडी के थ्रू बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, अब अगर वेस्ट जो है वो बाहर नहीं आएगा तो वो अंदर पॉइजनस हो जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ओके, in animals, waste is excreted in the form of urine, feces, sweat and carbon dioxide. As you already know, carbon dioxide is released by a
बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स में जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होता है, यूरिन, फीसिस और स्वेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। Plants excrete unwanted gases through the stomata present on the leaves. Some plants remove the waste products as secretion in the form of gum, latex, resin, etc. देखिए जो प्लांट्स है वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, उनके जो प्लांट्स के अंदर अनवांटेड गैसेस होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब कुछ फॉर्म है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि गम हो गया, लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट एट ऑल। इफ यू ब्रेक द ट्विग ऑफ अ रबर प्लांट और अ मेडर प्लांट, लेटेक्स इज विजिबल। इन सम प्लांट्स द वेस्ट products are stored within the plant body. These waste products are not harmful to the plant. ओके देखिए नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो बिल्कुल एक्सक्रीट नहीं करती क्योंकि वो लिविंग नहीं है, तो उनमें कोई प्रोसेस नहीं होता, उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो एक्सक्रीट भी नहीं करती। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एक रबर प्लांट है, अगर उसको कट करोगे, उसको कट करने के बाद आप देखोगे वो कुछ वाइट सा रिलीज करेगा, उसको हम लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लेटेक्स कमिंग आउट ऑफ अ प्लांट, इस तरीके से। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। All living things have the ability to produce new organisms of their own kind by the process called reproduction. Reproduction is absolutely necessary for living things to survive generation after generation. Different plants reproduce through different parts like roots, stem, flowers, seed, etc. The fruits we eat have seeds, and when these seeds are sown in soil, they become a new plants and trees. ओके देखिए लिविंग बींग्स जो होते हैं वो अपने खुद के जैसे दूसरे प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, बेबीज को बर्थ देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से क्या प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स है उनमें कैसे होता है, जैसे कि रूट्स के थ्रू होता है, स्टेम्स, फ्लावर्स, सीड। अगर किसी की रूट को आप ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करेगी, फ्लावर को आप ग्रो करेंगे तो फिर वो भी ग्रो करेगा, सीड तो ऑब्वियसली सीड को आप सो करते हैं तो फिर वो भी ग्रो करती है, ठीक है। नाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबी बर्ड्स कम आउट। मोस्ट एनिमल्स give birth to young ones like cats to kittens and human beings to babies। देखिए एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अंडे देते हैं, तो उनके जैसे जो अंडे देते हैं वो अंडे टूट करके के उनकी तरह ही उनमें से एक एनिमल निकल के आता है। बर्ड्स भी एग्स ले करती हैं, ठीक है। नाउ एनिमल्स जो उनके यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि कैट्स बर्थ करती है किटन, छोटी छोटी कैट्स होती है, उनको हम किटन्स बोलते हैं। वैसे ही डॉग क्या करते हैं, बर्थ करते हैं पपी का, ओके। और ह्यूमन बींग्स बेबीज को बर्थ देते हैं, ओके। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मोड्स। सम ऑफ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर एज फॉलोज। देखिए एनिमल्स और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उसके कुछ मोड्स बताए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स। देखिए थ्रू स्टेम कटिंग एज इन हैना एंड रोज, through seeds in a pea, gram and mango, through leaf of a bryophyllum, through stem pieces containing a bud as in potato। देखिए स्टेम कटिंग, रोज हो गया और हैना हो गई, अगर उनके स्टेम्स को आप कट करके सॉइल में डालेंगे और ग्रो करेंगे तो फिर वो ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। नाउ सीड्स जैसे कि पी की, ग्राम की, मैंगो की, इन सीड्स को आप ग्रो कर सकते हैं एक प्लांट पे। लीफ, ब्रायोफिल्म की जो लीफ होती है उससे जो पेड़ है वो उग सकता है, ठीक है। और स्टेम पीसेस हो गए, जैसे कि बड हो गया, पोटैटो में जो होता है उसके थ्रू भी आप एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन साइकिल इन बर्ड्स किस तरीके से होता है। सम एनिमल्स लाइक काउ गिव बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स। लैब एक्टिविटी 2। ऑब्जेक्टिव plants reproduction through stem cutting. Materials required: stem cutting of a rose plant, a tool to cut plant, a pot, soil and water. Procedure: take a stem cutting to a rose plant, make an oblique of slanting cut when cutting the stem. Take a pot filled with soil and plant the stem cutting in it. Add water to the pot regularly.
Observation. Within a few days, you will find that a new plant starts developing from the cutting plant in the soil. Inference. Living plant can reproduce. ये आप खुद से करेंगे. Living things move and respond to stimuli. Living things show movement. Most of the animals move from one place to another and also show other body movements. They also show locomotion. Locomotion is a movement from one place to another. For example, is walking, running, flying, swimming, etc. Okay. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है. अब जब वो मूवमेंट करती हैं उसे जब हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. तो लोकोमोशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करके जाना उसको बोलते हैं. अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हो गई वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग. ओके. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड शो मूवमेंट. वी हैव जस्ट सीन द while responding the sunlight, the stem of the plants bends towards it and roots keep on getting deeper and deeper into the soil. The flowers and leaves of some plants fade away during night and blossom back during the day. अब देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगह पे फिक्स तो ज़रूर रहते हैं लेकिन मूवमेंट ज़रूर होती है. जैसे जैसे वो ग्रो करने लगते हैं उनकी स्टेम्स ग्रो करती हैं, रूट ग्रो करती हैं, ठीक है. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं शाम होते होते वो थोड़े से झुक जाते हैं, डल पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सनलाइट उन पे जाती है, वो दोबारा से खिल उठते हैं. ओके. Any change in the surrounding which produces a reaction in an organism is called a stimulus. Plural stimuli. The organism's reaction to the stimulus is called a response. Okay. हमारी सराउंडिंग में जब कोई भी चेंज आता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस, जिसका प्लूरल होता है स्टिमुली. अब ऑर्गेनिज्म का जो रिएक्शन होता है स्टिमुलस के तरफ उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स. ओके. स्टेम ऑफ अ प्लांट बेंड्स टुवर्ड द सनलाइट. फ्लावर इन सम प्लांट क्लोज आफ्टर सनसेट एंड इन सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट, also known as Mimosa pudica, have leaves fold on being touched. These are examples of response of plants to stimuli like sunlight, sunset and touch. Okay, देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है. फ्लावर्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के वो क्लोज हो जाते हैं सनसेट के बाद, मतलब कि थोड़े डल पड़ जाते हैं, और जैसे ही सनलाइट आती है वो दोबारा से खिल उठते हैं. और कुछ प्लांट्स जैसे कि टच मी नॉट जिसे हम बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम जो है मिमोसा प्यूडिका है, ठीक है. इसको अगर आप टच करेंगे, इसकी लीव्स को जैसे ही आपने टच किया, जो ओपन लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है. Other living organisms like human beings also show response to stimulus. For as we quickly withdraw our hand if we touch a hot object, here a hot object is a stimulus which makes us respond quickly. देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी स्टिमुलस की तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. अब अगर आपने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप सडनली क्या करेंगे, अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है. तो वो क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो गर्म है, ठीक है. नाउ लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन. All living things have a fixed lifespan. The time between the birth and the death of a living thing is called a lifespan. All living things take birth, grow, reproduce, grow old and die. But non-living things do not have a definite lifespan. Okay, देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन होता है, मतलब कि उनके बर्थ से लेके उनके डेथ तक का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, बूढ़े होते हैं एंड देन उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कभी भी ओल्ड नहीं होते, ठीक है, उनका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता. अब देखिए, माउस का कितना होता है, 2 to 3 ईयर्स का होता है. बर्ड का 15 to 20 ईयर्स होता है. मैन का 70 to 80. रेडवुड ट्री अप टू 4000 ईयर्स. लैब एक्टिविटी 2. Objective: to show the response of plants to stimuli, that is sunlight. Procedure: take a potted plant, keep it in a room near a window where sunlight and air is available during the day. Water the plant for a few days. Observation: you will notice that the plant starts bending in the direction of the sunlight. Inference: since
द प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स द सनलाइट, इट शोज द प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। ये आप खुद से करेंगे। लैब एक्टिविटी 4। Objective: to show the response of plant to stimuli, touch. Procedure: look for a touch me not plant, Mimosa pudica plant, and touch its leaves. Observe and any movement in the leaves. Observation: you will see movement in the flowers, that is leaves, folds on being touched. Inference: few plants also respond to stimuli, that is touch. ये आप खुद से करेंगे। Difference between living things and non-living things. Table 4.1, difference between living things and non-living things. Characteristics: living things, non-living things. Cellular organization: made up of cells, no cells found. Nutrition: required food, do not require food. Respiration: respire, do not respire. Growth: growth is present in the internal and irreversible. Growth is absent. If present, it is external and reversible. Excretion: excrete waste products. Waste products not found. Movement: show movement on their own, do not show movement on their own. Response to stimuli: present, absent. Reproduction: reproduce, do not reproduce. Lifespan: yes, have lifespan, do not have lifespan. ओके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। अब लिविंग थिंग्स में होती हैं क्या क्या और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या होती हैं। सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये सेल से बने होते हैं, और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में देख सकते हैं नो सेल्स फाउंड। न्यूट्रिशन, उसमें लिविंग थिंग्स में फूड रिक्वायर्ड होता है। नॉन लिविंग थिंग्स हम सबको पता है, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो डू नॉट रिक्वायर फूड। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स में रेस्पायर करते हैं वो, नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करते। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है इंटरनल और लेकिन इरिवर्सिबल होती है, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल होती है तो वो रिवर्सिबल होती है, उसमें और मटेरियल्स ऐड करके उसे रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें कोई वेस्ट नहीं पाया जाता। मूवमेंट, हाँ लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते जब तक हम उन्हें खुद जाकर मूव ना करें। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली प्रेजेंट होती है लिविंग थिंग्स में, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। लाइफ स्पैन, हाँ एक लाइफ टाइम होता है लिविंग थिंग्स का, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ टाइम नहीं होता। ओके। सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज, सो दे आर एज फॉलोज। देखिए जैसे कि हमें पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने अभी पढ़े बहुत सारे डिफरेंसेस, वहीं इनमें सिमिलैरिटीज भी होती हैं, तो आइए जानिए क्या क्या होती है। ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर, हैव मास, शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब इस अर्थ पे आप कोई भी चीज़ देखोगे वो मैटर कहलाती है, और मैटर जो होता है उसको स्पेस चाहिए होता है, साइज चाहिए होता है, शेप चाहिए होता है। ठीक है। Now, physical and chemical changes take place in living as well as non-living things. Living और non-living things में physical और chemical changes आते हैं। Everything is made up of basic structural units. In case of living things, cell is a structural unit, whereas in case of non-living things, atom is a structural unit. Okay. एवरीथिंग, जो कुछ भी बना हुआ होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट से बना हुआ आता है। लिविंग थिंग्स में हमें मिलता है सेल, सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होता है एटम। ओके। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल्दो plants and animals are living things, yet they differ in a number of ways. The following table explains the difference between plants and animals. देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन स्टिल उनमें डिफरेंसेस होते हैं। देखिए कौन सी है, टेबल 4.2, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, cannot prepare their own food, obtain food from plants or other animals, heterotrophic in nutrition. Locomotion, movement from one place to another.
No locomotion, only movement. Show locomotion and movement. Growth, limited certain regions, also occurs throughout their lives. Diffused in all parts of the body, stops after a certain age. ओके देखिए, न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। वहीं एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन मतलब कि मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक की, तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती लेकिन उनकी ग्रोथ ज़रूर होती है, वहीं एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, ठीक है। ग्रोथ, लिमिटेड सर्टेन रीजन्स पे ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ वो दिखती रहती है, लेकिन एनिमल्स पे एक टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे आके जो मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। हैबिटेट, the organisms depend on their habitat for food, water, air, shelter and other needs. Habitat means a dwelling place, a home. Okay, habitat क्या होता है? किसी भी एक एनिमल का वो एरिया जिससे वो यूज टू है, ठीक है, जहाँ पे उसे हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया एक एनिमल का हैबिटेट जिससे वो यूज टू है और जहाँ पे वो ऑलरेडी शुरू से रहता आया है, ठीक है। नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, land is the habitat of many plants and animals including human beings. There are large variations in forest, grassland, deserts, coastal and mountainous regions located in different parts of the world. Okay, देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का मतलब होता है वो हैबिटेट्स जो कि लैंड पे हैं। अब लैंड पे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेनियस रीजन्स, ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं जो कि लैंड पर ही है, ओके। नाउ एक्वेटिक हैबिटेट्स, ponds, swamps, lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats. Water serves as a dwelling place of some plants and animals. Most of these use air dissolved in the water. The aquatic habitats can be divided into two parts: freshwater, lake, pond, streams, river, etc. and marine water, seas, oceans, etc. Okay. एक्वेटिक हैबिटेट मतलब कि अंडर वाटर जो लोग रहते हैं वो उसे हैबिटेट, हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, यूज टू होते हैं, जैसे कि पोन्ड, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस हो गए, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स जो हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका हो गया फ्रेश वाटर जिसमें आपका लेक्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स आ जाता है, और दूसरा आपका मेराइन वाटर हो गया जिसमें सीज एंड ओशंस आता है, ओके। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, oviparous animals are those which lay eggs. Example: birds, lizards, snakes, etc. Viviparous animals are those that give birth to offsprings. Example: human beings, dogs, rabbits, cats, etc. Okay. Oviparous उन animals को बोलते हैं जो कि eggs lay करते हैं, वहीं viviparous हम उन animals को बोलते हैं जो कि अपने ही जैसे दूसरे को बर्थ देते हैं, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, ओके। रीड एट अ ग्लैंस, द थिंग्स दैट वी सी अराउंड us can be broadly categorized into living things and non-living things. Living things have certain common characteristics: growth, nutrition, respiration, excretion, reproduction, response to stimuli and movement. All living things need food which provides them energy to carry out their life processes. Living things show irreversible and permanent growth. The process of living beings to obtain food and use it obtained energy is called nutrition. The process of released energy by the burning of food inside a body with the help of oxygen is called respiration. Stimulus is defined as something that causes a change or a recreation. Living things respond to stimuli. Excretion is the process of removal of waste products and unabsorbed food materials from the body. The surroundings where plants and animals can live is called their habitat. Plants, animals and microorganisms together constitute biotic components of a habitat. Key terms to know: unicellular organisms, living things made up of a single cell; multicellular organisms, living things made up of multicellular organisms, living things made up of multiple cells. Nutrition, the process of living beings to obtain food and use it to energy.
respiration, the process of intake of oxygen, releasing energy, food, and releasing carbon dioxide. Breathing, the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Growth, an increase in size and strength of an organism. Excretion, the process of removal of waste and unabsorbed food from the body. Reproduction, the ability of living things to produce young ones and of their own kind. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.